آج کل تاش فین تو ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ان کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا میرے ساتھ وقت گزارنے کا، اور اگر وقت ملتا بھی ہے تو وہ وقت وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں گزار دیتے ہیں، تو ان کو سنڈے کو بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ بیچارے کتنا کام کرتے ہیں۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ آج وہ تاش فین کی پسند کا کچھ اسپیشل بنائے۔ آئیڈیا برا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ کر سامان چیک کرنے لگی۔ ہر چیز موجود تھی بریانی کے لیے، اگر کچھ نہیں تھا تو وہ صرف بریانی مسالہ تھا۔ ارے بریانی کا مسالہ تو ہے ہی نہیں، اب ان کے لیے بریانی کیسے بناؤں گی؟ وہ اپنی سوچ میں مصروف تھی جب اچانک اسے خیال آیا مسالے تو قریب ہی سڑک شاپ پر مل جاتے ہیں، تو وہیں سے جا کر لے آتی ہوں۔ اتنا دور تھوڑی ہے کہ تاش فین کے ساتھ جانا، مجھے خود بھی تو باہر نکلنا چاہیے، اس طرح تو میں ساری زندگی یہاں کے طرز زندگی سمجھ ہی نہیں پاؤں گی۔ آج میں خود جا کر لے آتی ہوں مسالے، تاش فین بھی خوش ہو جائیں گے کہ میں نے خود سے۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کو لاک لگاتے لفٹ کی طرف آئی۔ وہ پہلی دفعہ اکیلے گھر سے نکل رہی تھی، دل میں ڈر بھی تھا، لیکن اس ڈر کو اس نے خود پر سوار نہیں ہونے دیا۔ آخر اس نے ساری زندگی اب یہیں گزارنی تھی، تو آہستہ آہستہ اس ملک کو سمجھنا بھی تھا جو اتنا مشکل نہ تھا۔ تاش فین کے ساتھ وہ جب بھی جاتی خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی۔ آج اسے وہ والی فیلنگ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ پیچھے پھر بھی نہیں ہٹی تھی۔ آج اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ فلم کی ایکٹریس کو ایکٹنگ کا اے بی بھی نہیں آتا تھا، اور صرف فلم کے پروڈیوسر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اسے اتنا بڑا رول مل گیا تھا کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے سارے اداکاروں کو وہ بے فضول ہی سمجھتی تھی، اور اوپر سے اس کے نخرے اتنے زیادہ تھے جو اچھے خاصے آدمی کا موڈ خراب کر دیتے تھے۔ اور پھر تاش فین کا اس کے ساتھ چپکنا بھی اسے برا لگا تھا، اور یہ بات کہیں نہ کہیں روز کو بھی بری لگتی تھی۔ روز نے 2-3 دفعہ اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ تاش فین سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھا کرے، لیکن اس کی بات کا اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تاش فین نے 2 دفعہ تو خود روز کو کہا تھا کہ وہ اس ایکٹر سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گئی تھی کہ روز کو اسے اس سے دور کرنے کے لیے دھکا دینا پڑا، جس سے وہ آخری 3 سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگی تھی کہ تاش فین نے اس کا ہاتھ تھام کر گرنے سے بچایا، لیکن پھر بھی اس کے مطابق اسے موچ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ روکنا پڑی۔ یہ ایک قسم کا اچھا ہی ہو گیا تھا، وہ ویسے بھی اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پہلے روز کی بے باک حرکتیں اور اب یہ لڑکی اسے بری طرح سے تنگ کر رہی تھی۔ اس وقت تو اسے صرف اپنی بیوی کی ضرورت تھی کہ وہ فلم کی شوٹنگ رکتے ہی گھر واپس آ گیا۔ اندر ہی اندر اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ آج کافی دنوں کے بعد وہ تناوش کے ساتھ کھل کر وقت گزار سکے گا۔ اس کا ارادہ اسے ڈنر پر لے جانے کا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی فلیٹ میں قدم رکھا اسے اپنا دروازہ لاک نظر آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی فلیٹ کی طرف قدم رکھا تو اسے اپنا دروازہ لاک نظر آیا۔ آج سنڈے تھا تو تناوش کو تو گھر پر ہی ہونا چاہیے، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے پریشانی سے اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے اپنا فون نکال کر اس کے نمبر پر کال کی، لیکن موبائل سامنے ہی صوفے کے آگے رکھی میز پر پڑا تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہو کر سارے گھر میں ایک نظر دوڑاتا جلدی سے باہر نکلا۔ تناوش میں اتنی ہمت تو ہرگز نہ تھی کہ اکیلی کہیں جا پاتی۔ پھر کہاں گئی وہ؟ بلکہ کیوں گئی تھی وہ؟ اسے بتائے بنا وہ بھی اس سے پوچھے بنا وہ گھر سے باہر نکلی ہی کیوں تھی؟ آج کل نیو یارک کی سڑکوں پر پروٹیسٹ چل رہے تھے، سننے میں تو یہی آیا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، اور انصاف نہ ملنے پر کالج کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکل آئے تھے، جس پر وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کر رہے تھے۔ وہ پتھروں کا بھی استعمال کر رہے تھے اور ایسی ہی اور بھی خطرناک چیزوں کا، جس سے کسی کو بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے فلیٹ کے باہر سڑک اس پروٹیسٹ کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا تاکہ تناوش کو دیکھ سکے۔ وہ لڑکی کہاں جا سکتی تھی؟ اور اگر گئی تھی تو کم از کم اسے بتا کر تو جا سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ زائنہ؟ سکون سے کیوں نہیں رہ رہی ہو تم؟ اور نہ مجھے رہنے دے رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہر روز ایک ہی ٹاپک چھیڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ اب تو ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے ہیں، کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لو، اپنا نہ صحیح ہمارے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لو۔ کیوں ایک فضول سی بات پر روز جھگڑا کر کے بیٹھ جاتی ہو؟ کم از کم تھوڑا تو ہوش کے ناخن لو۔ اب ہماری فیملی بننے جا رہی ہے، ہم 2 سے 3 ہونے جا رہے ہیں، کم از کم اب تو خیال کرو۔ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، اور جہاں تک بات اس بچے کی ہے تو میری اولاد اسی گھر میں جنم لے گی اور اسی گھر میں پلے بڑھے گی۔ میرے گھر والے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، تو بہتر ہوگا کہ میرے گھر والوں سے ان کی خوشیاں چھیننے کی تم بھی کوشش مت کرو۔ دیکھ رہی ہو نا تم
कितनी खुश है मेरी फैमिली अपने पोते पोती की खबर सुनकर। वो उसे समझा रहा था, कभी लड़कर, कभी सख्ती से और कभी वो प्यार से, लेकिन वो थी कि समझना ही नहीं चाहती थी। हाँ तो तुम्हारे भाई भाभी ने दे तो दिया उन लोगों को वारिक के रूप में खुशखबरी, और कितनी खुशियाँ चाहिए इन लोगों को। पूरे घर में क्या बच्चों की फौज पैदा करनी है? मुझे इस घर में नहीं रहना, और ना ही मेरा बच्चा इस घर में आंखें खोलेगा। जो भी कर लो, मैं यहाँ पर अपने बच्चे को हरगिज़ जन्म नहीं दूंगी। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो शौक से रहो, लेकिन मेरा बच्चा इस घर में हरगिज़ आंखें नहीं खोलेगा, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो जब से प्रेग्नेंट हुई थी इब्राहिम को बात करने का मौका भी नहीं देती थी, और उसकी तबीयत को मद्देनज़र रखते इब्राहिम भी लड़ने झगड़ने से काफ़ी एहतियात करता था। मैं तुम्हारी इस फजूल की ज़िद से तंग आ चुका हूँ। इस घर से तो तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। बाकी जो तुम्हें करना है शौक से करो। वो कहकर कमरे से निकल गया, जबकि वो पैर पटक कर रह गई थी। ताशमैन पागलों की तरह उसे हर तरफ ढूंढ रहा था। हर तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट थे। कुछ लोग हाथों में पत्थर लिए हुए थे तो कुछ रेपिस्ट के पुतले जला रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत हंगामा था। उसे यकीन था कि तनावुश यहाँ आई भी होगी तो रुकी नहीं होगी, क्योंकि उसे भीड़ वाली जगहों से खौफ आता था। पिछले 2.5 महीनों से वो इतना तो उसको समझ चुका था कि वो उसके डर को और हर बात को समझता था जिससे वो डरती थी। उसकी हर पसंद को वो जान चुका था। कहाँ चली गई है ये बेवकूफ़ लड़की? ये मोबाइल क्या मैंने उसे घर पर फेंकने के लिए दिया था? कोई होश नहीं कि मैं यहाँ इतना परेशान हो रहा हूँ। अगर कहीं जाना था तो कम से कम बता कर तो जा सकती थी। वो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ जा रहा था। आसपास के जितने भी इलाके थे वहाँ की सारी शॉप्स बंद थी, और वो उसे कहीं दिख भी नहीं रही थी, जिसकी वजह से उसकी परेशानी और गुस्से में इजाफा होता चला जा रहा था। तनावुश, कहाँ चली गई हो यार? वो अपने सर के बालों को नोचता पागलों की तरह उसे ढूंढे जा रहा था, लेकिन वो कहाँ गायब हुई थी उसे कुछ भी पता न चल रहा था। तकरीबन 2 घंटे वो उसे हर तरफ ढूंढने के बाद वापस अपनी बिल्डिंग के नीचे आया था। हो सकता था वो घर वापस आ गई हो, कहीं आसपास ही गई हो, कहीं आसपास ही गई हो। इसी सोच के साथ वो घर वापस आया तो अब तक यहाँ पर दरवाज़ा लॉक था, मतलब वो अब तक नहीं आई थी। कहाँ चली गई थी ये लड़की? वो घर के अंदर जाने की बजाय वापस निकल गया था। उस वक्त उसके लिए सबसे अहम तनावुश थी। वो यहाँ के माहौल को नहीं समझती थी। इस तरह उसका अकेले घर से निकलना खतरे से खाली नहीं था, और ऊपर से नीचे चलने वाले प्रोटेस्ट को लेकर वो पहले ही परेशान था। यकीनन वो इन सब चीज़ों से घबरा जाती। वो हर तरफ उसे ढूंढ रहा था, ऊंची ऊंची आवाज़ में उसे लोगों के बीच आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो होती तो सुनती। एक बार मिल जाओ मुझे, तुम्हारी टांगें काट कर घर पर बिठा दूंगा, लेकिन कभी अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। अगर अब भी वो उसे ना मिली तो वो न जाने क्या कर बैठेगा। वो बिरयानी का मसाला लेने आई थी, लेकिन उसे मसाला क्या मिलता, सब दुकानें ही बंद थी। उसे ठीक से ज़हन नशीं तो नहीं था, लेकिन पास ही यहाँ एक और दुकान भी थी। यही सोचकर उसने बैग कंधे से लगाते आगे की तरफ कदम बढ़ाए, जब उसे सामने से बहुत सारे लोग आते दिखाई दिए। बहुत सारे लोग उसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट लग रहे थे। सबके हाथों में बैनर्स थे, पत्थर थे। वो शोर मचा रहे थे, किसी के लिए इंसाफ के लिए चीख रहे थे। उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन सब से घबराते उसने आगे की तरफ कदम बढ़ाए और उस भीड़ से निकलकर पीछे की तरफ आए। लेकिन यहाँ से कुछ और लोग उस तरफ जाते नजर आए। उस तरफ इस तरफ से भी बहुत से लोग जा रहे थे। आसपास सब दुकानें बंद थी। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उन सब लोगों से बचते बचाते वो काफ़ी आगे निकल आए। अब तो उसे याद भी नहीं था कि जाना किस तरफ है। दूर दूर तक जब उसे कोई भी दुकान खुली नज़र न आई तो उसने वापसी जाने का इरादा किया। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थीं उसी तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो अपने आप को कोसती वापस अपनी बिल्डिंग के करीब जाने लगी, लेकिन अचानक उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सामने रखे रेपिस्ट के पुतले को आग लगा दी और फिर उसे पत्थर मारने लगे। वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि उनके चिल्लाने से अजीब खौफनाक आवाज़ें पैदा हो रही थीं। एक तो उसे ऐसी आवाज़ों से डर लगता था, दूसरा ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो जाती भी नहीं थी। उसे इतने लोगों के बीच में अच्छा महसूस नहीं होता था। वो घबराने लगती थी, और अब भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। इतने सारे लोगों में ना तो वो आगे का रास्ता देख पा रही थी और ना ही आगे जा पा रही थी, जबकि उन आवाज़ों ने उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था।
वो कानों पर हाथ रख गई। उसे लोगों के धक्के लगने लगे। वो उन लोगों को पीछे करने की कोशिश में आगे जा रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते भी उसे काफ़ी धक्के लग रहे थे। वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी उतना उन सब लोगों में फंसती जा रही थी। जब अचानक एक पत्थर उसके सर पर आ लगा और खून तेज़ी से बहता उसके माथे पर लकीर छोड़ गया। उसका सर चकरा कर रह गया। अपने मुंह पर हाथ रखते वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, उसने आगे पीछे हर तरफ देखना चाहा। शायद ताशफैन उसे ढूंढते हुए उस तरफ आ गया, लेकिन वो उसे नाम से पुकारता ही कहाँ था। उसे उसका नाम आता ही नहीं था। वो बेबसी से अपने चेहरे पर हाथ रख के अपने खून को रोकने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसे किसी कीमती मता की तरह अपने सीने में भींचे तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। उन लोगों की भीड़ को वो कोई भी अहमियत दिए बिना तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। वो ताकतवर था, हिम्मत वाला था, अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता था। वो सच में उसका मुहाफ़िज़ था और आज वो उसकी हिफाजत करने के लिए आ गया था। अपनी आँखों को बंद किए बस वो उसके सीने के साथ लगी चले जा रही थी। उसे कुछ ना सुनना था, कुछ भी नहीं देखना था, बस यहाँ से निकलना था। ताशफैन पागलों की तरह उसे हर तरफ ढूंढता फिर रहा था, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बुला रहा था। वो बेशक उसे तंग करता था कि उसे उसका नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ वो अपने नाम की पुकार सुनकर ही उसके पास आएगी। और उसने उसे बहुत ऊंची आवाज़ में पुकारा, लेकिन इतने सारे लोगों में उसकी आवाज़ शोर के पीछे दबने लगी थी। उसे परेशानी होने लगी। वो कहाँ गई थी और किस तरफ गई थी। एक तो वो अपनी बिल्डिंग में भी किसी को नहीं जानती थी कि किसी को कुछ बता कर जाती। वो खुद भी बिल्डिंग वालों से ज़्यादा बना कर नहीं रखता था। यही वजह थी कि उसने किसी से पूछा भी नहीं, बस खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। इतना ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। यहाँ से नाउम्मीद होकर वो पीछे की तरफ मुड़ने लगा, जब उसे अपने आसपास उसकी खुशबू महसूस हुई। उस खुशबू को उसने बहुत नज़दीक से महसूस किया। वो अगले ही लम्हे पलटा था, जब कुछ फासले पर वो अपने चेहरे पर हाथ रखे उसे नजर आए। उसने अगले ही लम्हे हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा और खुद से लगाते वहाँ से निकलता चला गया। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को जान से मार डाले, लेकिन जिस तरह वो कांप रही थी और उसके माथे से खून बह रहा था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। वो बस तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया और अगले 2 मिनट में वो उसे भीड़ से काफ़ी दूर लेकर आ चुका था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? क्यों गई थी तुम उन लोगों के बीच में? जानती भी हो कि इस वक्त ये लोग कितने पागल हो चुके हैं। वो देखते भी नहीं कि यहाँ पर कोई मर रहा है या जी रहा है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने इंसाफ की जंग में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि किसी को पत्थर लगे या आग, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शख्स को इंसाफ दिलाने के चक्कर में ये अंधे हो जाते हैं। वो उसे खुद से अलग करता समझाने लगा। उसका अंदाज बहुत सख्त था। वो बहुत गुस्से से बात कर रहा था। वो यहाँ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी उसे ये अंदाज़ा भी ना था। वो जानना चाहता था वो यहाँ क्यों आई थी, वो नीचे क्यों आई थी, इतने लोगों के बीच में वो क्या कर रही थी। क्या वो भी इन सब चीज़ों का हिस्सा थी? अगर थी तो क्यों थी? क्या उसको पता नहीं था कि ये सब कुछ उसके लिए कितना गलत है? एक तो वो भीड़ से डरती थी, ऊपर से उन्हीं चीज़ों का हिस्सा बन गई थी। वो आज उसके होश ठिकाने लगाने वाला था। वो आज उसे ये सब कुछ समझाना चाहता था, ताकि आइंदा कम से कम वो इस तरह की कोई हरकत ना करे। अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो वो आज किसी भी तरह की नरमी करने का इरादा नहीं रखता। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था वो अपनी फीलिंग्स उससे शेयर नहीं कर सकता था उस वक्त। उसको थोड़ी देर पहले उसके जहन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। जबकि वो उसे देखती आंसू बहाती तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसके सीने से लगी थी। ताशफैन उसे न जाने क्या कहने वाला था, अचानक खामोश हो गया। वो आज किसी भी तरह से नरमी करने का इरादा नहीं रखता था उसके साथ। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उस थोड़ी देर पहले उसके जहन में न जाने कितने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, जबकि वो उसे देखती आंसू बहाती तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसके सीने से जा लगी थी। ताशफैन उसे न जाने क्या क्या कहने वाला था कि अचानक खामोश हो गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उस वक्त वो कितनी खौफजदा थी वो अंदाज़ा लगा सकता था, लेकिन उसके डर को देखते वो उसकी गलती को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।
लेकिन उस वक्त वो इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी कि वो चाह कर भी उसे मज़ीद कुछ नहीं कह सका। उसके गिर्द अपने बाजू का घेरा बनाते वो उसे आहिस्ता से अपने बाहों में उठाता अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दिया। उसके दिमाग में बस एक यही सोच थी, अगर वो आज यहाँ वक्त पर ना पहुँचता तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। वो एक डरी सहमी हुई चिड़िया थी। वो भला उन लोगों का मुकाबला कैसे कर सकती थी, न जाने वो यहाँ आई कैसे थी। ये सब कुछ तो उसे अब घर जाकर ही पता चलना था। वो अपने साथ लगाए उसे लिफ्ट में दाखिल हुआ था। लिफ्ट का बटन प्रेस करते उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा जो आंखें बंद किए उसके सीने पर सर रखे हुई थी। उसका नाजुक सा वजूद उसने अपने बाजू में कैद किया हुआ था। आज उसे एहसास हुआ कि ये छोटी सी लड़की उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखने लगी थी और उसे कितना ज़्यादा चाहने लगा था वो। आज उसे पता चला था कि वो उससे दूर नहीं रह सकता। बस थोड़ी ही देर उसे अपने पास ना पाकर उसकी हालत क्या हो गई थी। अगर वो उसे थोड़ी देर और ना मिलती तो न जाने क्या कर गुजरता। आज सचमुच उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका सारा गुस्सा अब झाग की तरह बैठ चुका था। उसका डर उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहा था। मज़ीद वो उसे यूं ही अपने बाजुओं में भरे लिफ्ट से निकलते दरवाजे के पास आया। बड़ी मुश्किल से उसने जेब से चाबी निकाली और आंखें बंद किए। वो उसके सीने पर सर रखे बिल्कुल खामोश थी। उसने दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा बंद किया और उसे लाकर सोफे पर बिठाया। बैठो, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। वो उसके माथे पर नरमी से अपना हाथ रखते उसकी चोट चेक करता कमरे में गया। वहाँ से फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आया तो वो अभी भी सोफे पर ही बैठी थी। ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके हाथ अब भी लरस रहे थे। वो समझ गया था कि इस वाक़ये ने उसे काफ़ी खौफज़दा कर दिया है। इस तरह पत्थर बरसाना, पुतलों को आग लगाना, शायद उसने ये पहली दफ़ा देखा था सब। लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट तो आजकल यहाँ चलते रहते हैं। कभी एक को इंसाफ दिलाने के चक्कर में, कभी दूसरे को इंसाफ दिलाने के चक्कर में। ये सब कुछ बहुत आम होने लगा था। चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका काफ़ी खून बह गया था। उसने मरहम पट्टी करते वो साथ साथ उसकी चोट पर फूंके मारकर उसे तकलीफ से बचाने की भी कोशिश कर रहा था। उसने उसका चेहरा साफ करने के बाद उसके माथे पर बैंडेज किया और फिर उसके लिए पानी लेकर आया। तुम ठीक हो ना? वो उसे अपने करीब करते हुए एक दफ़ा फिर उसका सर अपने सीने पर रख चुका था, जबकि वो उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। अब ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस पर तुम इस तरह से रोने लगो, या इस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन होते हैं। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे हालात में तुम्हें भीड़ में नहीं निकल जाना चाहिए था। ये लोग पागल होते हैं, इनको खुद भी नहीं पता होता कि कर क्या रहे हैं, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह के प्रोटेस्ट में वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए हिस्सा लेते हैं। तुम क्या पागल थी जो ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने चली गई? क्या तुम्हें पता नहीं था वहाँ ये लोग ये हरकतें करने वाले हैं? वो उसका चेहरा थामे अपने सामने करते पूछने लगा। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इन लड़ाई झगड़ों में हिस्सा लेने जाऊंगी? मैं तो आपके लिए मसाला लेने गई थी। वो बुरी तरह से रोते हुए बाहर जाने की वजह बता रही थी, जबकि वो तो उसके मसाला लफ्ज़ पर ही अटक गया। मसाला? तुम मेरे लिए मसाला लेने क्यों गई थी? वो परेशानी से पूछने लगा। क्या उसकी बीवी का दिमाग हिल गया था जब वो ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी? आप इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे, तो मैंने सोचा बिरयानी बना दूं। बिरयानी मसाला था नहीं, तो मैंने सोचा मसाला तो पास से ही मिलता है, ले आती हूँ। आप खुश हो जाएंगे कि मैंने खुद से कोई काम किया, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और मेरा बैग भी कहीं गिर गया। मेरे बैग में पैसे थे। वो सूसू करती उसे बता रही थी, जबकि उसके इस क्यूट अंदाज पर ना चाहते हुए भी वो हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था। वो अभी उससे सख्ती से पेश आना चाहता था, उसे डांटना चाहता था, लेकिन उसका यूं रोना उसे कुछ करने भी नहीं दे रहा था। उल्टा अब उसे उस पर प्यार आ रहा था। तो ये इतना भी ज़रूरी तो नहीं था। मसाले के चक्कर में अगर मैं अपनी बीवी को खो देता तो? वो अपनी नाराज़गी और अपना गुस्सा एक तरफ रखते हुए उससे सवाल करने लगा। क्यों ज़रूरी नहीं था? आप इतने दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खा रहे, इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं आप। वो उसे देखते हुए बोली, जबकि वो एक नज़र अपने आप को देखता, अपने कसरती मसल्स को देखकर अपनी कमज़ोरी को तलाश कर रहा था जो उसकी बीवी को उसमें नज़र आ रही थी। तुम इन मसालों को छोड़ो। अगर तुमने मेरे बारे में सोचना ही है ना, तो कुछ और सोचो। ऐसा सोचो जिससे मैं खुश हो जाऊं। खाना तो मैं रोज़ ही खा लेता हूँ। तुम्हें मेरी थकावट दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। और वो कैसे दूर होगी? वो उसे देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी, जैसे उसके हुक्म की गुलाम हो, अभी उसके कहते ही हुक्म बजा लाएगी। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? कम से कम अपनी ताई अम्मी से ये हुनर तो सीख कर आती। खाने बनाने और दर्स देने तो अच्छे से आते हैं। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, जबकि वो कोशिश के बावजूद उसकी बातों को नहीं समझ पाई थी। आओ अंदर चल के सिखाता हूँ।
तुम्हें के शोर की थकावट को कैसे दूर किया जाता है। वो उसका हाथ थामे उसे अपने साथ अंदर ले आया। उसका मकसद उस वक्त उसे उस खौफ से बाहर निकालना था जिसकी वजह से वो अभी तक कांप रही थी, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो उसे खुद से मसरूफ़ कर ले। वो उसे कमरे में लाते हुए अलमारी के पास आया और उसमें से वही उस दिन वाली नाइटी निकाल कर उसके सामने की। अस्तगफिरुल्लाह, दिमाग ख़राब हो गया आपका। वो पीछे हटते हुए जाने लगी तो अचानक उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था।